السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا میرا جو میسیج ہے یہ خاص طور پہ ہمارے معزز علماء اکرام، ائمہ اکرام، حفاظ اکرام اور مدارس میں پڑھانے والے معلمین کے نام پر ہیں، یا کسی بھی دینی شعبے میں کام کرنے والے ہمارے معزز علماء، حفاظ، ائمہ، ان لوگوں کے لیے آج کا میسیج ہے، کیونکہ کل ایک شہر سے کچھ علماء اکرام ملاقات کے لیے آئے اور درمیان گفتگو انہوں نے یہ بتلایا کہ مفتی صاحب ہمارے شہر میں 14 سال سے ایک امام صاحب ایک ہی مسجد میں امامت کر رہے تھے، اور 14 سال کی امامت کے بعد میں ان امام صاحب کو امامت کی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے حافظ مظفر صاحب کا جو 13 سال والا مسئلہ تھا، وہ ہمارا ویڈیو، حالانکہ میں نے لائیو مجلس کے اندر ان کو جواب دیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ملینوں میں لوگوں نے واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو ہے شیئر کیا، یعنی ملینز میں لوگوں نے اس کو دیکھا، اور مجھے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء اکرام کے صرف انڈیا سے ہی نہیں، باہر ملکوں سے بھی الحمدللہ کالز آئے، میسیجز آئے، اور انہوں نے کہا مفتی صاحب ابھی ہم کیا بولے اور کیسی کیسی دعائیں آپ کو دیں، دل کے گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ علماء اکرام جو انتہائی سنجیدہ مزاج ہے، اور زیادہ تر جو تقریر اور خطابت کے شاہ سوار نہیں ہے بلکہ وہ قلم کے شاہ سوار ہے، ویسے علماء اکرام نے بھی اپنے گروپس کے اندر اور اپنے فیس بک کے اوپر ہمارے اس چھوٹے سے ویڈیو کو وہ کسی نے کٹ کر دیا تھا، اسی کو انہوں نے بھی وائرل کیا۔ دیکھو، اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا چونکہ وہ حافظ مظفر صاحب کا مسئلہ تھا، اب یہ کل کا جو مسئلہ ہے کسی شہر کے امام صاحب کا ہے جن کو 14 سال کی امامت کے بعد نکال دیا گیا۔ آپ بھی جس شہر سے میری یہ بات سن رہے ہوں گے، آپ کے یہاں پہ بھی کسی امام صاحب کو 15 سال کی امامت کے بعد، 20 سال کی امامت کے بعد، 25 سال اور 30 سال کی امامت کے بعد نکال دیا گیا ہوگا۔ آج جو ہے میں ائمہ اکرام کے پیٹھ پیچھے چلنے والی سازشیں اور ہمارے مدارس کا جو نظام ہے، اس کی کچھ خامیاں، اس کی کچھ خرابیاں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے ہمارے علماء ائمہ جو ہے پھر اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھ سکیں گے ذہنی طور پہ۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میری عمر جب 20 سال تھی اور میں نے اسی زمانے کے اندر مذہبی لوگ، یعنی میرے جیسے پیجامہ، کرتا، جبہ، ٹوپی وغیرہ پہننے والے لوگوں کی مکاریوں کو میں نے دیکھ لیا تھا، اور ان کے لڑائی جھگڑے میں نے دینی مشوروں میں دیکھ لیا تھا، اور دوسرے کو ہٹانے کا، اس کو بٹھانے کا، اس کو آگے بڑھانے کا، اس کو پیچھے کرنے کا، یہ سارے ષڈینتر میں دیکھتے رہتا تھا۔ میں اسی وقت میں چوکنا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں رے بھائی، اپنے کام دھندے کا بھی دیکھو، ساتھ میں روزی روزگار کا بھی دیکھو، اپنے آپ کو فائنینشیلی مضبوط بناؤ۔ تو الحمدللہ آج میں میرے اس فیصلے پہ مطمئن ہوں۔ ابھی میں عمرے کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں کل، اور وہ بھی VIP عمرہ، یعنی میرا خود سے میں نے ٹکٹ لیا، خود سے جو ہے 5 اسٹار ہوٹل مکۃ المکرمہ میں بک کیا ہوں، ایسے ہی ابھی مدینہ المنورہ میں بھی بک کرنا ہے وہاں جانے کے بعد میں۔ الحمدللہ ساری چیزیں اطمینان بخش میری ہو چکی ہے۔ حالانکہ میں بھی 1200 روپئے مہینے سے مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، ٹوپیاں، کتابیں، عطر وغیرہ کی میں دکان لگایا کرتا تھا، لیکن مجھے جب یہ چیز سمجھ میں آئی، میں تبھی سے چوکنا ہو کے آج میں مطمئن ہوں۔ مجھے کسی مسجد کی امامت سے ہٹا دیا جائے تو انشاءاللہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اب اگلے مہینے میرا کیسا ہوگا، میرے گھر کے کرائے کا کیسا ہوگا، میرے الیکٹرسٹی بل کا کیسا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے الحمدللہ۔ اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے مدارس، جو انڈیا کا نظام ہے مدارس کا، میں سمجھتا ہوں صرف ندوۃ العلماء لکھنؤ اور ایسے ہی اعظم گڑھ میں ایک ادارہ ہے، میرے خیال سے مدرسہ اسلامیہ اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، اور بھی ایسے کچھ ادارے ہوں گے، لیکن وہ بہت کم ہوں گے جو اپنے نصاب کے ذریعے سے اپنے طلباء کے اندر خود فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔
بہت دھیان سے سنو، میں بہت باریک بات آپ کو بتا رہا ہوں. خود فیصلہ لینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اپنے فیصلوں کو کسی پہ مسلط کرنا یہ دوسری چیز ہے. تو خود فیصلہ لینے میں استاد اس کو سمجھتا ہوں، مدرسہ اس کو سمجھتا ہوں، میں محتمم اس کو سمجھتا ہوں، اور مدرسے کا نصاب میں اس نصاب کو سمجھتا ہوں جو نصاب اپنے پڑھنے والے کو اس قابل بنائیں وہ خود فیصلہ لے سکے، وہ خود اپنے زندگی کے بارے میں جو ہے ڈیسیزن لے سکے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا نہیں کرنا ہے، اس کو کس کی کتاب پڑھنا چاہیے، اس کو کس کی کتاب نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کس کا بیان سننا چاہیے، اس کو کس کا بیان نہیں سننا چاہیے، اس کو کسی سے بیعت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بیان کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ فیصلہ لینے کی صلاحیت جو مدرسہ اپنے طالب علم میں پیدا کرتا ہے، جو استاد اپنے طالب علم میں پیدا کرتا ہے، جو نصاب اپنے پڑھنے والے میں پیدا کرتا ہے نا، اصل میں وہی اوریجنل نصاب ہے، وہی اوریجنل مدرسہ ہے، اور وہ استاد کہلانے کا حقدار ہے. میں تو سمجھتا ہوں ویسا جو استاد ہے اس کے تو پیروں کو چومنا چاہیے. خود صلاحیت پیدا کر رہا ہے یعنی اپنے طالب علم میں. اب دوسرا پارٹ، ہمارے انڈیا میں نے کہا نا اس طرح کے چند مدارس ہیں، میں نے نام لے کے کہا، جیسے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، اور مدرسہ اسلامیہ اعظم گڑھ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہوں گے اور کچھ ادارے، مجھے نہیں پتا ابھی، لیکن اس کے علاوہ جو میرا اپنا تجربہ ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 99% ہمارے یہاں پہ مدارس کا جو نصاب ہے، پڑھانے کا جو طرز عمل ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم کو صرف اور صرف ذہنی غلام بنانا ہے. اس کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ چیز بھرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ طالب علم اس ادارے سے فارغ بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کے اوپر مسلط رہنا ہے. یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں پیدا کرنا ہے اچھے برے کی، بلکہ اس پہ اپنی سوچ کو مسلط کرنا ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں اس کو مسلط کرنا ہے، استاد کی جو سوچ ہے وہی اس کے اوپر مسلط کرنا ہے، مدرسے کی جو سوچ ہے وہی اس کے اوپر مسلط کرنا ہے. جو نصاب بنایا گیا ہے وہ ایسا ہی تاکہ وہ ایک محدود دائرے کا جو ہے مینڈک بن کے رہ جائے. تو میں ایسے ادارے کو ادارہ نہیں سمجھتا ہوں، میں ایسے استاد کو استاد نہیں مانتا ہوں. جو استاد اپنی سوچ اپنے شاگرد کے اوپر مسلط کر کے اس کو ایک بندھوا مزدور بنانے والا جو ہے تعلیم دے، ایسا نصاب جو طالب علم کو بندھوا مزدور بنائے، بندھوا مزدور، اس کو غلام بنائے، غلام، کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی ہر ہفتے 15 دن کو سال میں آپ نے جو ہے اپنے منادی دیتے رہنا چاہیے، اور آپ نے جو ہے یہاں پہ تقیہ سلام جو ہے وہ آ کے کرتے رہنا چاہیے، فرشی سلام، اس طریقے سے آپ نے سلام عرض کرتے رہنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا اب ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. تو اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مدرسے سے جو فارغ ہونے والا بیچارہ استاد یعنی ہمارا جو طالب علم ہے وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ عالم دین بن گیا، اس کی دنیا ہی نہیں ہے، کوئی دنیا ہی نہیں ہے اس کی باہر. وہ 24 گھنٹے تذکرہ کریں گا اپنے اسی مدرسے کی چار دیواری کا، وہ 24 گھنٹے بات چیت کریں گا اپنے انہی اساتذہ کی. اس کی شادی ہو گئی، اپنے جورو کو اپنے مدرسے کے ہی قصے کہانیاں سنائیں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی وہی سنائیں گا. اس کا اپنا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی محدود ہی رہے گا. مطلب باہر کی جو دنیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، باہر کی دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اس کو بنایا گیا ذہنی غلام. اور اگر مان لو وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاتا ہے نا، تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں وہی لوگ آپ کی مخالفت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے جن کو آپ اپنا سمجھتے تھے، کیونکہ آپ ان سے زیادہ ایڈوانس بن رہے ہو، آپ ان سے بغیر مشورے کے کام کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے آپ کو غلام بنایا تھا، ان کے نصاب نے ہی. یہ پرابلم ہے ہمارے انڈیا کا. ہمارے یہاں پر اس طریقے سے وہ بیچارہ مدرسے سے فارغ ہونے والا معلم، اس کی دنیا ہی نہیں ہوتی ہے، اور الٹا اس کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی یہ دنیا کی تعلیم جو ہے نا، یہ تو فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد کی تعلیم ہے. ارے تم کو اللہ تعالیٰ نے علم عرفان عطا کیا ہوا ہے، علم قرآن عطا کیا ہوا ہے، تو تم اگر اس کے مقابلے میں دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو. اب دیکھو یہ اتنی بڑی غلط
इतनी बड़ी गलत फहमी है और इतना बड़ा झूठ और मक्र उनको मालूम है। तुमको अगर अंग्रेजी पढ़ाई जाए तो तुम उनके ज़हनी गुलाम नहीं रहोगे। तुमको अगर दुनिया की मालूमात हो जाए तो तुमको हकीकत पता चल जाएंगी कि ये जितने मन घड़त लोग और ये जितने खुद साख्ता है, ये सब इनके साथ में बाप दादाओं की निस्बतें हैं, ख़ानदानी निस्बतें हैं। इसलिए ये सब जो है इन्होंने मसनदों पे कब्जे करके रखे हुए हैं और तुम जैसों को बंधुआ मजदूर बनाना है। इसलिए अपने बाप दादा के मन घड़त किस्से कहानियाँ तुमको सुनाएंगे, उनकी मन घड़त करामतें तुमको सुनाएंगे। तुमको अपने से जोड़े रखने के लिए बार बार तुमको मना किया जाता रहेगा और तुमको स्कूल की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की तालीम जो है कारून, नमरूद, हामा, शद्दाद और उनकी तालीम बताई जाएगी। इस तरह से तुम्हारी मेंटालिटी को जो है ना, अब उसका नुकसान मैं आपको बताता हूं। अच्छा, उसका पहले तो नुकसान ये है कि आपको ये एहसास फिर बहुत दिनों के बाद में होगा कि किस तरह से कुछ लोग वो आपका ब्रेन वॉश करके, किस तरह से आपको मिसगाइड करके, आपको गलत तरीके से जो है सिर्फ अपना गुलाम बनाए रखने के लिए, फिर चाहे वो किसी मदरसे का मोहतमिम हो सकता है, वो कोई खानकाह के पीर साहब हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, या आप जिनके यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको इतने फजाइल अपने ही बताएंगे क्योंकि उनको मालूम है आप उनके वहां से आप एक काम के आदमी हो। अगर आप अपनी दुनिया बनाने के लिए निकल रहे हो, उसी के साथ आपकी आखिरत कैसी बनेगी मैं अभी आपको वो बताने वाला हूं। अब देखो ये कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, कितनी बड़ी गलत फहमी है ये। एक आलिम दीन अगर वो मदरसे की तालीम के साथ या मदरसे से फारिग होने के बाद में ग्रेजुएशन करता है, वो अगर प्रोफेसर बन जाता है, वो अगर डॉक्टर बन जाता है, वो अगर इंजीनियर बन जाता है ना, तो मेरा तजुर्बा है ये, वो और अच्छे ढंग से जो है ना दीन की खिदमत करता है। मैं देख चुका हूं ऐसे लोगों को। अभी मुमरा की ही मिसाल ले लो आप। मुमरा के अंदर ही जो है अभी हमारी जो रिफाह चेंबर एंड कॉमर्स की जो मजलिस थी, वहाँ पे हमारी एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। उन्होंने पीएचडी की है, खुद की फैक्ट्री कंपनी चला रहे हैं और उसी के साथ साथ उम्मत को फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताओ, वही आलिम दीन अगर वो बाकी दुनिया के उलूम नहीं सीखते, पीएचडी नहीं करते और इंडस्ट्रीज की लाइन में नहीं आते, आज उम्मत को वो इस तरह से मजबूत बना रहे हैं। मुझे बताओ ना, उनकी जो जिंदगी है फिर वही, यानी किसी मोहतमिम की गुलामगिरी में पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, फिर उनकी दूसरी नस्लें भी, फिर मोहतमिम साहब के बेटे की जो है आपकी औलादें खिदमत कर रही है। मतलब खानदानी बंधुआ मजदूरी का सिलसिला चालू है ये। अच्छा, हमको ये कहा जाता है ये दीन का काम है। अब मुझे बताओ, क्या ये दीन का काम नहीं है? जो वो हमारे डॉक्टर साहब मुमरा वाले खुद की फैक्ट्री चलाकर आलिम दीन और लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करके ज़कात देने वाला बना रहे हैं, गुर्बत को दूर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलक़िरतुर राशिदा में भी यह सबक है और बुखारी शरीफ में भी आपको मिलेंगी यह हदीस कि वो कुल्हाड़ी अपने हाथों से उनको कुल्हाड़ी लगा कर दी और कहा 15 दिनों तक जंगल में जाओ, लकड़ियाँ तोड़ो, बाजार में लाकर बेचो और मुझे नज़र नहीं आना। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाया, मजबूत बनाया। अंसार मदीना को बागबानी के फार्मूले और तरीक़े बताए और मुहाजिरीन मक्का जो थे उनको बिजनेस के, तिजारत के, कारोबार के फार्मूले बताए, क्योंकि ये मिशन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मत को उसके पैरों पे खड़ा करना ताकि ज़कात के देने वाले सब हो और लेने वाला कोई ना हो। माशाअल्लाह वो उस पे अमल कर रहे हैं। अब देखो, गलत फहमी, आपको रोका जाता है। क्यों रोका? मैं दूसरी चीज़, एक आलिम दीन अगर वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर बनता है ना, तो वो बच्चों को खाली दुनिया की तालीम नहीं पढ़ा रहा है, वो उनको मसाइल भी बता रहा है। वो उनकी, और कॉलेज और स्कूल के अंदर जो है सब लोगों को पता होता है भाई फलाने मौलाना है, फलाने आलिम साहब भी है, तो अब लोग अपने दूसरे मसले मसाइल भी लेके आ रहे हैं उनके पास। वो उनकी रहबरी कर रहे हैं, वो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। और मैंने देखा हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे साथी जो है ना, वो प्रोफेसर्स है, वो इंजीनियर्स है, वो लेक्चरर्स है। माशाअल्लाह उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माहौल के उनके यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे अगर बाद में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो एक दीनदार डॉक्टर बन रहे हैं, वो एक दीनदार जो है इंजीनियर बन रहे हैं, वो एक अमानतदार ताजिर बन रहे हैं।
तो ये फायदा हो रहा है, ये आपको नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ उनको बंधुआ मजदूर, आप मोहतमिम साहब के गुलाम बनकर रहे। और ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मेरा एक साथी, उसने जो है एमए क्या एमकॉम किया, उसने क्या क्या पढ़ा, डीएड किया, बीएड किया, पीएचडी किया, पता नहीं बेचारे ने 25-30 डिग्रियां लेके रख दिया। लेकिन उसके बावजूद आज भी वो एक मोहतमिम साहब का बंधुआ मजदूर बना हुआ है। और बेचारा जो है, जब भी मैं गया तो अपने पूरे दर्द भरी कहानियां और दास्तानें और गम गुसार, मतलब ऐसे ऐसे वो अपने हालात सुनाते रहता है। और मैं सर पे हाथ रख के बोलता हूँ, भाई तुमने जिस टाइम पे तुम जवान थे और जिस टाइम पे तुम जो है फैसले ले सकते थे, तुमने गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए था, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करना चाहिए था, तुमने जिला परिषद में फॉर्म भरना चाहिए था। नहीं, अपने जिले में, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी भर सकते थे। कॉरपोरेशन है, मुंबई कॉरपोरेशन है, पुणे कॉरपोरेशन है, और कौन कौन सी कॉरपोरेशन है, वहां पे अपना तुमने फॉर्म सबमिट करना चाहिए था। यहाँ अगर नहीं हो रहा है ना, तो बाहर मुल्कों में इंडिया का अगर कोई आलिम दीन वो डीएड होता है या बीएड होता है ना, ऐसे उसको पलकों पे बिठा के जो है वहां के स्कूलों में टीचर के तौर पे, मैं खुद मिलकर आया हूं अरब मुल्कों के अंदर ऐसे टीचरों को। अगर आप ऐसे मुल्कों में जाके भी टीचिंग कर रहे हो और वहां पे आप लेक्चरर या प्रोफेसर या इस तरह से खिदमत कर रहे हो, अब बाकी वहां पे जो हमारे इंडिया और उर्दू हिंदी समझने वाले वो जो लोग हैं, आप उनमें दीन की मेहनत कर सकते हो। उनको से मुलाकातें करके जो है, कभी अपने फ्री वक्त के अंदर आप कभी 3 दिन भी वहां पे लगा रहे हो। चलो ठीक है, आप तबलीग को नहीं मानते हो, तबलीग का काम नहीं भी करते हो, आप पर्सनली तो कम से कम अपने गांव वाले, अपने लोग, उनसे मजदूर लोग वो जो है, उनको कभी एक मर्तबा जोड़ रहे हो, कभी उनके दरमियान में बात करके उनके अंदर भी दीनी फिक्रे पैदा कर रहे हो। ये भी तो दीन का एक काम है। प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ पे रोका जाता है, क्योंकि हमारा निसाब ही ये है कि जो पढ़ने वाले तलबा है उनके अंदर की सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करके जो उस्ताद सोचता है वही सोच उस पर मुसल्लत करना, जो मदरसे का मोहतमिम सोचता है वही सोच उसके ऊपर मुसल्लत करना, और जो ये करता है वही सोच उसके ऊपर मुसल्लत करना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। इसीलिए बंधुआ मजदूर, इसीलिए ज़हनी गुलाम। और फिर हम जो 14 साल इमामत करने के बाद हमको निकाल दिया गया। क्यों? हमारी वो जो सोच है। अच्छा, अब मैं इमामत पे भी आता हूँ, क्योंकि 30 साल इमामत किया मैंने और 15 मस्जिदें बदला हूँ 30 साल के अंदर। तो मेरा जो तजुर्बा है वो मैं आपको बताता हूँ। हर मस्जिद में क्या होगा, आप खुलूस के साथ में मेहनत करोगे, लेकिन जब आपका बयान सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लग जाएंगे, या फिर आप मकतब के अंदर 10 बच्चों से शुरुआत करके 500 से 1000 तक वो बच्चों को लेकर जाओगे ना, खुद आपके वहीं पे कुछ दुश्मन पैदा होंगे। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस होंगे जिनको ऐसा लगेगा, पता नहीं भाई इमाम साहब के लोग बहुत मान रहे, अब अगले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़े रहते क्या मालूम। फिर ऐसा होगा, आपके ही अपनी बिरादरी का कोई अड़ोस पड़ोस में आपके जैसा ही जो है कोई इमाम होगा, उसको लगेगा साला मेरे कस्टमर कम होते जा रहे, अपना धंधा कम हो रहा, फुलाने मस्जिद के अंदर ज्यादा हो रहा। वो आप में आयब निकालेगा, उनका वाला ज़ौलीन सही नहीं है, रुकू की तस्बीह सही नहीं है, और सजदे में इतनी गलतियां हैं। इस तरीके से आप परेशान हो जाओगे। फिर नहीं तो आजकल तो फिर अब मसलकों के झगड़े हो गए हुए हैं, जमातों के झगड़े हो गए हुए हैं, एक एक जमात में 3-3 4-4 टुकड़े हो गए हुए हैं। ये कौन से टुकड़े का मानने वाला है, देखो इसको, ये खंडूलाल ग्रुप का है क्या बंडूलाल। अब ये खंडूलाल बंडूलाल ग्रुप की वजह से मैं समझता हूं हजारों अइम्मा की इमामतें जा चुकी है। तो हम जो है ना, अपने पैरों पे खड़े रहे, पैरों के ऊपर। किसी का ज़हनी गुलाम आपको बनना नहीं है, किसी की गुलामगिरी आपको करना नहीं है। अरे भाई, आप अपना कोई कारोबार शुरू करो, आप अपनी कोई तिजारत। और इतना वक्त होता है हमारे अइम्मा के पास, फजर की नमाज के बाद से लेके जोहर तक। अब मान लो फजर की नमाज 6 बजे से लेके, तो जोहर की नमाज अगर 1:30 बजे भी हो रही है 1 बजे तक, तो 6 से लेके 1 बजे तक 7 घंटे है आपके पास। जोहर के बाद में भी वक्त है आपके पास, वक्त ही वक्त है आपके पास। अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं ना, तो मैंने यहीं पे पूना के अंदर जो है गोखले नगर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज।
वहाँ से मैंने जो है ना लैपटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का कोर्स कब किया हुआ हूँ, फजर की नमाज के बाद मैं पढ़ाता था तालीम बालिगान, और उसके बाद घर पे जाके चाय नाश्ता वगैरह करके निकलता था क्लास के लिए। 7:30-8 बजे कुछ मेरी क्लास रहती थी। उस टाइम पे मैं पढ़ने के लिए, वो भी सर्दी की शिद्दत के मौसम के अंदर जाता था। मैंने मेरे टाइम को यूटिलाइज किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो है ना फिर प्रोग्रेस होता गया। मैं जब जॉब करने लगा उसके बाद होते होते मैं सॉफ्टवेयर की लाइन में आया। हालांकि मेरा सिलेक्शन हुआ था हार्डवेयर के लिए, क्योंकि हमने वही पढ़ा हुआ था, और कंपनी में इमरजेंसी के अंदर सॉफ्टवेयर वालों की ज़रूरत पड़ गई, तो कंपनी ने बोली अब हम तुमको ही ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है 3-3, 4-4 महीने की, और फिर हम सॉफ्टवेयर की लाइन में आ गए। फिर टेस्टिंग उन्होंने हमको कंप्यूटर, इन्होंने कंपनी वालों ने सिखाई। अब उसके अंदर आगे प्रोग्रेस होता गया आपका। फिर हम सीनियर की पोस्ट पे पहुंचे, और जो मुल्कों के हमने प्रोजेक्ट रिलीज किए वहाँ की गवर्नमेंटों ने हमको सर्टिफिकेट दिए कि हम आपके काम से बहुत खुश है और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बताओ, टाइम को हमने सिर्फ यूटिलाइज किए, यूटिलाइज। अंग्रेजी मुझे बराबर से नहीं आती थी ना। मैं रमज़ान के महीने में फजर की नमाज के बाद वही गोखले नगर के अंदर सिम्बायोसिस कॉलेज का इंग्लिश लर्निंग जो है इंस्टीट्यूट है, उनका पूरा का पूरा एक कैंपस है, वहाँ जाता था। मैंने सिम्बायोसिस से अंग्रेजी सीखा हुआ हूँ। वहाँ जाता था मैं, वो भी बारिश में भीगते हुए। और फिर क्लास होने के बाद में 1 घंटा बैठता था मैं लाइब्रेरी के अंदर, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी। आप कैंपस में दिन भर रहो बोले, लेकिन अंग्रेजी सीखो हर तरीके से। बहुत अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, पैसे ले रहे हैं तो वैसा सिखाई भी उन्होंने। तो हमने टाइम को यूटिलाइज किए, क्योंकि मैं लोगों की मक्कारियों को पहले ही समझ गया था कि लोग इतने खबीस, आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो ना, उनमें कितने मुनाफिक है आपको पता नहीं है। जो आपको चाय पिलाने वाले हैं उनमें कितने मुनाफिक है आपको पता नहीं है। जो आपको चाय पिला रहा है, आपको जो है मलाई खिला रहा है, बन मस्का खिला रहा है, लेकिन एक आधा तुफैली साथ में आ रहा है, उसके पेट में अंगार लगी हुई है। इमाम साहब घाड़ रहे बोले यार उसको। अरे इमाम साहब को रोज ही लेके जाता वो चाय पीने को, मलाई भी खिलाता उनको, उसके पेट में जबरदस्ती का दर्द, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, वो आधे महल्ले में पेरते फिर रहा। इमाम साहब इसको घाड़ रहे थे, इमाम साहब उसको घाड़ रहे थे, इमाम साहब को वो चाय पीने ले जाता, उसकी मलाई खा रहे थे, जबरदस्ती का दर्द उसके पेट में। ऐसे मुनाफिकीन बहुत होंगे आपके अतराफ में, आपके साथ में। जब आप ये मुनाफिकीन को पहचानोगे ना, तो आप खाली मोहतात रहने का और अपने प्रोग्रेस। तो मैंने वही किया। मैंने जब देखा कि भाई ऐसे बहुत सारे मुनाफिकीन हैं, इसलिए बेहतर ये है अपन अपने प्रोग्रेस का सोचो, अपन अपने जो है। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुतमईन हूँ, मेरी इस साल की जो ज़कात है 10 लाख रुपये से ज़्यादा। मैं 1200 रुपये महीने की इमामत का इमाम हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, जो निसाब की, जो अपने दिमाग पे हावी होने वाली बातें, हमने किसी को हावी नहीं होने दी। अपने सोच पे, अपनी फिक्र पे, सुने सबकी, करे अपनी, जो अपने को करने का था। तो तुम्हारा काम क्या है, वो हमारा काम है। तुम अपनी सोच मुसल्लत मत करो, क्या अच्छा बुरा है वो हम देख के लेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन हमारा प्रॉब्लम, हम हजरत 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 करके घसते रहते, बस पूरी जिंदगी घसने में चले जाती हमारी। और मकसद ही ये होता है कि तुम पूरी जिंदगी घसते रहो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एहसान किए तुम्हारे ऊपर, धुलाते रहो तुम उनकी। यही प्रॉब्लम है हमारे उलामा का, हमारे हुफ़ाज़ का, हमारे अइम्मा का। इसलिए जिंदगी का प्रोग्रेस रुक जाता उनका। वो अपनी वो महदूद सोच से बाहर नहीं निकल पाते, और 50 लोगों से मशवरे करते रहते। मैं यार ये धंधा करने का सोच रहा हूं, मैं वो कारोबार का, ये फेल। जिंदगी में किसी से मशवरा मत करो। 2 रकात इस्तिखारा पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, इस्तिखारा करो, अल्लाह से मांगो, किसी से नहीं। तुम जिससे मशवरा करोगे वो सबसे बड़ा तुम्हारा हासिद होगा, वही तुमको मिसगाइड करेगा, वही तुमको गलत मशवरा देगा। तुम बोलेंगे यार मैं ये धंधा शुरू कर, कायकू कर रहे, मार्केट में 1000 दुकानें हैं, कौन ले रहा तुम्हारे पास से। तुम बोलेंगे यार मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं कॉलेज में, अरे दुनिया है वो, दुनिया की जलील दुनिया है वो। तुमने सुने नहीं बड़े क्या फरमाते हैं। कोई तुम्हारा पैर पकड़ के जो है ना तुमको रोकने का मशवरा गिशोरा कुछ नहीं लेने का। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में मुझे क्या करने का है, मैंने काम शुरू कर दिया। मेरे शुरू करने के 2-2, 3-3 साल बाद लोगों को पता चला, अरे मैं ये काम करता हूं बोल के। मशवरा नहीं लेते अपन जिंदगी के अंदर किसी से, अल्लाह से।
2 रकात पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। ठीक है, चलो तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, बजाय आपको 14 साल के बाद निकाले जाने के, बजाय आपको 15 साल, आप अपनी इतनी तैयारी रखो कि आप अगर मस्जिद से अलहदा भी हो गए तब तक आपका एक आलीशान बंगलो होना चाहिए, तक आपके घर के सामने एक आधी कार आ जाना चाहिए। मोहताज नहीं कि मुझे आज मस्जिद से निकाले, अब मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों के स्कूल के फीस का कैसा, ये सोचने का ही नहीं। उससे पहले अपने आप को फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना लो कि तुमको अगर एक, मैंने क्या बताया, मैंने 15 मस्जिदें छोड़ा, 15 मस्जिदों का रिकॉर्ड है मेरा, लेकिन मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना के रखा था। ये मस्जिद से अगली मस्जिद के बीच में 6 महीने का गैप भी पड़ गया मुझे, तो वो 6 महीने में मेरा धंधा, मस्त कारोबार इत्मीनान से चलता था अल्लाह के करम से। ऐसा बनाओ अपने आप को। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।